Hello everyone. After a short break, again I'm going to upload a video for class 11th. This is chapter number 6, physical activities and leadership training. Before starting the content, I would like to say please share and subscribe my channel so that you can get new videos and watch full videos for the benefit. In this chapter we are going to discuss about physical activities, what are the qualities of physical activities, and we have categorized physical activities in 4 categories, and after that we are going to discuss about the leadership, what are the qualities of a leader, categories of leader, and how we can make leaders by physical activities. This is the content for the video. Now we can start the video, the main content. What is physical activities? When we are talking about physical activities, any activity in which our muscle is going to be contracted and relaxed, and creating a movement, that creating a bodily movement, that is called physical activity or physical movement. See, our life is full of innumerable physical activities like walking, sitting, running, or a lot of things are there, a lot of movement are there in our life in which our muscle is contracting and relaxing. We all are aware about it that whenever we need a movement, whenever our any muscle, any body part or our complete body is going to move, our muscle need to be contracted and relaxed. अब जब हम बात करते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की एंड रिलैक्सेशन की, तो दैट रिक्वायर्स एनर्जी, एंड देन in the movement of in any physical movement or in physical activities, 2 things are involved. The first thing is muscles contraction and relaxation, by which we are getting movement or momentum, and second thing is energy expenditure. So we can say that physical activity is a activity or is an any bodily movement produced by skeletal muscles and which requires energy for the mechanism, that is physical activity. Like we can say one more thing, that in physical activities or in any physical movement, no doubt that is there is a loss of energy. Without energy we cannot move, without energy our muscles cannot work efficiently. इवन आर BMR और बेसिक जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा एनर्जी के एब्सेंस में. बट दीज फिजिकल मूवमेंट्स गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर सर्वाइवल, एंड इवन समटाइम्स दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड्स अ स्ट्रेंथ फॉर सम विग्रस एक्टिविटीज ऑल्सो. सो दीज एक्टिविटीज आर beneficial for our daily routine life, day life, as well as intense performance of physical activities also. So हम लोग बात करते हैं WHO की. WHO ने भी इसमें डिफाइन किया हुआ फिजिकल एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज बाय विच वी आर गोइंग टू survive or by which we are going to meet out our daily routine लाइफ. प्लस WHO ने एक और वर्ड इसमें ऐड किया हुआ है, दैट इज द एनहांसमेंट ऑफ हेल्थ और एनहांसमेंट ऑफ फिटनेस. सो द पीपल दोज हु आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज, इन एनी फिजिकल एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, एंड इवन इफ वी आर परफॉर्मिंग आवर डे टू डे लाइफ वर्क बाई आवर ओन, so that is also a physical activity, and by these activities we can enhance our health and fitness.
as we all are aware about it that in our daily routine life a lot of physical activities are there. Even if I'm talking, if I'm writing anything on the writing pad or in diary, these all are physical activities, like climbing on stairs, making food for us, or doing any minute work. If we are going to be involved in physically in these activities, that is a physical activity. And the physical activities makes our life comfortable, makes our survival comfortable in a society or in our own life also. When we are talking about the benefits of physical activities, there are a lot of benefits of physical activities, like that makes us disease free. Nowadays we all are surrounded with a lot of lifestyle diseases like diabetic, asthma, arthritis, even blood pressure, back pain, neck pain, that we can say spondylitis. Even a lot of postural deformities are there. By physical activities or by performing our own work by our own, we can correct these diseases. And इसका हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, हमारी जो डे टू डे सर्वाइवल है, दैट विल बी इजी फॉर विद फिजिकल एक्टिविटीज़. सेकेंड थिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ enhance our balance and equilibrium, mental equilibrium in our day to day life. जब भी हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारी फिजिकल फिटनेस तो मेंटेन होती है, साथ में हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन्स को डेवलप करता है, जो जिससे हमारी जो नॉर्मल फिनोमिनन है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो वर्किंग एफिशिएंसी है, वो कंट्रोल होती है. जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का भी, एंडोक्राइन सिस्टम से जो भी हार्मोन्स और एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है वो बहुत प्रॉपरली होता है, और इससे हमारी जो बॉडी की वर्किंग है, हमारा जो मेंटल एफिशिएंसी है, वो भी स्ट्रांग होता है, जिससे कि फिजिकल बैलेंस आता है. और साथ में हमारा जो मेंटल इक्विलिब्रियम है, हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है, जो इमोशन कंट्रोलिंग कैपेसिटी है, वो भी बहुत बढ़ जाता है. बिकॉज एट वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैव सम emotions like anger, hate, love, affection, desire. A lot of things are there. So if we are going to perform physical activities, by physical activities हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारी जो ग्लैंड्स हैं, उनसे हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत प्रॉपरली होगा, और इससे हमारी जो एफिशिएंसी है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, वो बढ़ जाती है. देन बाय फिजिकल एक्टिविटीज़ वी कैन गेट appropriate body weight. Obesity is a very common problem in youth as well as in adults. और साथ में आज के जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, they are also suffering with obesity. So by physical activities they can get a proper ideal body weight. Some other benefits like physical activities strengthening our muscles and bones. As we all are aware about it that physical activities involves a lot of skeletal muscle movements. जितनी भी हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उस सब में हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, साथ में हमारी स्केलेटल सिस्टम भी इन्वॉल्व होती है. सपोज इफ आई एम लिफ्टिंग अ पेन, in this activity also our muscles as well as our skeletal system is going to be involved, and somehow we are doing strengthening of the muscles, by which we are going to tone up our muscles and providing resistance to muscles, by which the muscles going to be very strong. Then बात करते हैं, these are by these activities we are going to enhance our survival in society, our quality of survival in society, and we will provide best services for the nation, for the society. बहुत कॉमन सी बात है कि अगर हम लोग फिट हैं, अगर हम
अपनी लाइफ को डिजीज़ फ्री जी रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो सर्वाइवल होगी वो बेस्ट होगी, बिकॉज एज वी ऑल आर वी नो अबाउट इट कि दिस यूनिवर्स इज कंसिस्टेंटली फॉलोइंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी. Any creature which is not changing themselves according to the condition, according to the need of the environment, वो टोटली डिसअपियर हो जा रहे हैं सोसाइटी से या एनवायरमेंट से या हमारे इस एटमॉस्फेयर से. तो अगर हमारी बेस्ट सर्वाइवल होगी, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर होगा, डेफिनेटली वी कैन सर्वाइव प्रॉपरली इन द सोसाइटी. एंड अगर हमारी सर्वाइवल अच्छी है तो वी कैन सर्व बेस्ट टुवर्ड्स आवर नेशन, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर पीपल. नाउ जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, इसको हम लोग 4 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज आवर डे टू डे लाइफ और वी कैन से लाइफ स्टाइल फिजिकल एक्टिविटीज़. सेकेंड है विग्रेस एक्टिविटीज़ और एनी इंटेंस वर्कआउट. द थर्ड इज मस्कुलर एंड बोन स्ट्रेंथिंग फिजिकल एक्टिविटीज़. एंड द फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी इन्हेंसिंग एक्टिविटीज़. सो जो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी है दैट इज लाइफ स्टाइल एक्टिविटी. इन दीज एक्टिविटीज़ we are not going to do any intense workout or any intense movement. These activities involves our day-to-day life work like walking, running, sometimes climbing on stairs, even washing our own clothes, performing normal day life, even sometimes some intense walking or very light warm exercise also involved in this category. Now the second category is vigorous workout or vigorous physical activities. These are intense workout physical activities. People those who are involved in some physical activities or in sports, games or any other profession which needs a lot of physical strengthening, they are going to perform these activities. These activities involves a lot of things like running, jogging, intense weight training. Different aspects of training are there like circle training, weight training, or sometimes aerobics, yoga, gymnastics, aquatics. A lot of things are there by which they can improve their they can perform the physical activities. Then बात करते हैं मसल्स एंड स्केलेटल बोन्स स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज़. ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम बेसिकली अपनी जो हमारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं उनके 3 फैक्टर्स पे काम करते हैं, जिसमें आता है स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड जो एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस का, उसको हम बोलते हैं एंडोरेंस स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ एंडोरेंस. इन दोनों पे या तीनों पे काम करते हैं हम एक साथ, जिससे हम अपनी मसल्स की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ साथ में उसका स्ट्रेंथ एंडोरेंस दोनों ही मेंटेन करते हैं. अब जब हम स्ट्रेंथ और एंडोरेंस की अलग अलग बात करते हैं तो स्ट्रेंथ इज़ अ डिफरेंट थिंग. लाइक आई कैन लिफ्ट दिस पेन, दिस इज माई स्ट्रेंथ, एंड आई कैन होल्ड दिस पेन अप टू 10 मिनट्स, दैट इज माई एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंडोरेंस. सो दोनों को ही अलग अलग, जब हम स्ट्रेंथ को अलग पढ़ते हैं, एंडोरेंस को अलग पढ़ते हैं और स्ट्रेंथ एंडोरेंस को एक साथ पढ़ते हैं. तो ये जो 3 एस्पेक्ट हैं हमारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के, उनको भी हम ट्रेन करते हैं. अब जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज़ की, इसमें आता है सबसे पहले वेट ट्रेनिंग. वेट्स के साथ में जो हम स्ट्रेंथिंग करते हैं वो हमारी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है. इसके अलावा ढेर सारे हमारे कंपाउंड एक्टिविटीज़ हैं लाइक पुल अप, पुश अप, क्रंचेस or squat. A lot of things are there by which we can get strengthening activities or strengthening power. Then बात करते हैं flexibility enhancing activities की. फिजिकल एक्टिविटीज़ में ऐसी एक्टिविटीज़ जो स्ट्रेंथ को, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करता हो, उसमें सबसे प्राइमरी एक्टिविटी आता है योगा. योग से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपल से एक मतलब है कि हमारा जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स है हमारे जॉइंट्स का वो बढ़ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी में. तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे रेंज ऑफ मूवमेंट्स जॉइंट्स का वो जितना ज़्यादा होगा, हम उतने ही डिजीज़ फ्री होंगे, उतनी कम हमारी इंजरीज होंगी, और साथ में एक जो पोस्ट एज जो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो
आर्थराइटिस की हो और स्टेरोफोर्सिस आर्थराइटिस है, इसके अलावा बैक एक की प्रॉब्लम है, नेक एक की प्रॉब्लम है, जितने भी जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली दूर होना स्टार्ट हो जाता है। साथ में योग भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलता है, जिससे हमें लगातार करने से हमारे मसल्स को टोनिंग मिलती है और स्ट्रेंथ मिलता है। साथ में कुछ ऐसे एरोबिक एक्टिविटीज़ भी हैं या स्पोर्ट्स में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी हैं जिससे कि हमें हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इन्हांस होती है। देन अब बात करते हैं लोग लीडरशिप की। लीडर क्या होता है? हम लोग जब लीडर की बात करते हैं, हु इज़ लीडर? लीडर मीन्स अ पर्सन हु कैन लीड, अ पर्सन हु कैन गाइड either a person or a group. लीडर बेसिकली एक ऐसा पोस्ट है या एक ऐसा प्लेस है या एक ऐसा वो पर्सन होता है जो किसी भी एक ग्रुप को या पूरे एक इंस्टीट्यूशन को या किसी एक पर्सन को लीड कर रहा हो या उसको डायरेक्शंस दे रहा हो या उसको गाइड कर रहा हो कि फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट, हाउ वी कैन मूव एंड व्हाट इज़ आवर एक्चुअल एम and how we can get our aim or how we can achieve our aim easily or in a very easy manner. So this is the work of a leader. This is a person who is leader. When we are talking about leadership qualities or a leader's category, basically there are two types of leaders in our society. One, elected leaders, and second thing is what selected leaders. सिलेक्टेड लीडर्स जनरली वो होते हैं जो बेसिकली एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होते हैं। उनके कुछ अपने सिलेक्शन नॉर्म्स होते हैं जिनमें वो कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके, अपने इंटरव्यूज़ क्वालिफाई करके, प्लस उनके अपने कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होती हैं जो वो क्वालिफाई करके और एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं और उनके अपने कुछ सेट लिमिटेड गोल्स होते हैं। लाइक हम इससे ढेर सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। लाइक इन सिविल सर्विसेज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल्सो लीडर फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट एंड ही इज बीन selected by the service selection commission. In our school, our principal is a leader. He is also selected by management or some board committees. और उनकी भी जो एक अपना दायरा है, एक अपना जो काम करने की का जो एक एरिया है उसमें वो काम करते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ लीडर इज पीपल दोज हु आर इलेक्टेड फॉर 2 years, 3 years, 5 years only, and this election is being dependent upon the people's or the public choice. इसके लिए कोई ऐसा सेट क्वालिफिकेशन नहीं होता है, कोई सेट रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ बेसिक्स मतलब रूल्स होते हैं जिसको उनको फॉलो करना होता है एंड पब्लिक इनको सेलेक्ट करती है। इनके भी जो रोल हैं वो लिमिटेड होते हैं या कुछ अपने पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए होते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। बात करते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। अ पर्सन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, द फर्स्ट थिंग इज लीडिंग क्वालिटी। A person who can take decision, who can lead a group or an institution. उसके अंदर वो लीडिंग क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने ग्रुप को या अपने इंस्टीट्यूशन को आगे लेकर के जा सके। सेकंड थिंग, ही और शी शुड बी विजनरी। विजनरी मीन्स जो उसके डायरेक्ट एम्स हैं, जो उसके डायरेक्ट वर्क है वो तो वो कंप्लीट कर रहा हो, बट साथ में उसको आगे का जो उसके फ्यूचर के प्लान्स हैं उसके लिए भी बहुत क्लियर होना चाहिए। प्लस अभी जो भी जिस भी टॉपिक पर वो जिस भी वर्क पर या एम पर अपने काम कर रहा हो उसका एम बहुत क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सो दैट ही शुड बी फोकस्ड अपॉन हिज वर्क ओनली। नाउ a leader should be clear with his thoughts. अगर लीडर ही कंफ्यूज होगा then in that way he cannot lead the group. He cannot even communicate with his group with the clarity of the thoughts. So a leader's thoughts should be very clear and impressive. Then
एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक बहुत ही क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए लीडर्स के अंदर। जो भी लीडर है उसको अपनी बात पब्लिक को समझाने के लिए या उसके अपने ग्रुप मेंबर्स समझाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, जिसमें ज़रूरी नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करे, बहुत टिपिकल वो लैंग्वेज यूज़ करे, बट he or she should be very impressive with his words, with your group, with his group or his institution. Second thing, उसके अंदर सेंस ऑफ इंटेग्रिटी होना चाहिए। इंटेग्रिटी मीन्स सिंपल क्लियरिटी और अ सेंस ऑफ थॉट बाय विच ही कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसे कैसे देखना है, कैसे करना है, ये बहुत अच्छे से उसे आना चाहिए। देन अ लीडर शुड बी अ गुड मोटिवेटर। जब तक एक लीडर अच्छा मोटिवेटर नहीं होगा वो अपने ग्रुप को मोटिवेट नहीं कर पाएगा और वो अपने ग्रुप को अच्छे कामों के लिए या जो उसका एम है उसके लिए वो आगे उसको बढ़ा नहीं पाएगा। देन बात करते हैं, अ लीडर शुड बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। जरूरी नहीं कि जो शुरू से जिस रूल्स को या जिन सिस्टम्स को हम फॉलो करते आ रहे हैं, जो एक नए लीडर का ग्रुप है उसको भी सेम फॉलो करे। वो अपने खुद के रूल्स बना सकता है, अपने खुद के तरीके इनोवेट कर सकता है और उससे अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है। सेकेंड थिंग, हैविंग फेथ इन हिज ग्रुप एंड वाइस वर्सा फॉर द ग्रुप ऑल्सो। मीन्स जब एक लीडर अपने ग्रुप में फेथ कर रहा होता है या अपने टीम मेंबर्स पर फेथ कर रहा होता है, तो सेम टाइम पर उसके टीम मेंबर्स को और उसके ग्रुप को भी उस लीडर का फेथ पाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा या अगर उस ग्रुप को अपने लीडर में फेथ नहीं होगा, देन वो उसे ब्लाइंड फॉलो नहीं करेंगे और ना ही उसको इतना प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे। तो एक ऐसा लीडर वो बेटर होता है जिसके अंदर या जिसके ऊपर उसका ग्रुप कंप्लीटली फेथ करता हो। देन एक जो बेटर क्वालिटी होती है लीडरशिप की, वो उसके अंदर एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ एम्पैथी होना चाहिए। सिंपैथी के साथ में उसके अंदर एम्पैथी की भी एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा लॉयल हो, डिटर्मिनेट हो अपने वर्क के लिए और साथ में हार्ड वर्कर हो, क्योंकि द लीडर शुड बी अ रोल मॉडल फॉर द ग्रुप। अगर वो दूसरों को मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए और खुद ही इज अ बैक बेंचर, देन ये पॉसिबल नहीं है कि जो उसका ग्रुप है या उसका जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत एफिशिएंटली वर्क करे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि ही और शी शुड बी रोल मॉडल फॉर द ग्रुप। देन बात करते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीडर। जब लीडर्स के रोल की बात करते हैं, इट इज़ वेरी क्लियर दैट ही हैज़ टू लीड, ही हैज़ टू एम्पावर हिज ग्रुप। उसके जो रूल्स हैं, उसकी जो गोल है वो सेट होना चाहिए। उस गोल को अचीव करने के लिए या उसकी वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके पास विज़न और पाथ की क्लियरिटी होनी चाहिए कि बाय विच पाथ दे आर फॉलोइंग द गोल। सेकेंड थिंग, उसको अपने ग्रुप को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि वो ग्रुप उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। इसके अलावा ही और शी शुड बी प्रो इंस्टीट्यूशन और प्रो द एम। मतलब लीडर की जो खुद की क्वालिटी ये है कि वो अपने लक्ष्य से, अपने एम से भटके नहीं, बल्कि वो हमेशा अपने एम को अचीव करने की सोचे। देन अब बात करते हैं बिहेवियरल चेंजेस स्टेज फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हुए इंसान के जो बिहेवियर है, उसका जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं, उसके बिहेवियरल पार्ट किस तरह से चेंज होता है। तो इसको बेसिकली हम लोग कुछ स्टेप्स में पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़। द फर्स्ट स्टेज इज प्री कॉन्टेम्पलेशन प्लांट stage. When we are talking about pre-contemplation stage, this is a stage where the people are going to be aware or going to be इंट्रोड्यूस्ड विद फिजिकल एक्टिविटीज़। जहाँ पर सपोज अगर मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम किसी को फिजिकल एक्टिविटी करते हुए देखा हुआ है,
तो धीरे धीरे मैं उसके बारे में इंक्वायरी करूँगा। मे बी मुझे ये भी लगे कि these activities are painful. In that condition we need a lot of motivation. I need a lot of motivation, then only I can perform the physical activities. This is the pre-conception plant or pre awareness stage for physical activities, जिसमें कि हम कुछ एनालिसिस करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ का कि इज इट फ्रूटफुल और फॉर अस और नॉट, इज इट नीडेड फॉर अस और नॉट, एंड with our own analysis we need a lot of motivation towards physical activities. Then बात करते हैं सेकेंड स्टेज की. सेकेंड स्टेज इज कॉन्टेम्पलेशन प्लांट स्टेज. जब हम बात करते हैं कॉन्टेम्पलेशन स्टेज की, दिस इज अ स्टेज वेयर पीपल आर मोर अवेयर अबाउट फिजिकल एक्टिविटीज़. उनके अपने एनालिसिस से एक जो पॉजिटिव एनालिसिस निकल के आता है, पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है, तो वो ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के. वो मे बी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक सिंपल रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग और समटाइम्स अपनी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर दें. एंड साथ में मे बी ये वो स्टेज हो जहाँ पर वो समटाइम्स कुछ एक्सपीरियंस के लिए भी ऐसी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर कि उनको अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक अच्छी मोटिवेशन ज़रूरत पड़ती है. साथ में उनका जो अपना भी एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आता है इन एक्टिविटीज़ को आगे ले जाने में. देन द थर्ड स्टेज इज़ प्लानिंग स्टेज. प्लानिंग स्टेज में जब उनको प्रॉपर समझ में आ जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, दे आर फुल्ली मोटिवेटेड, दे आर पॉजिटिव टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटीज़, तो वो अपनी फिजिकल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को डिजीज़ फ्री करने के लिए, इवन खुद को ज़्यादा एक्टिव करने के लिए, सोसाइटी में ज़्यादा फिट करने के लिए वो प्रॉपर एक प्लानिंग करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें वो अपनी डाइट चार्ट, जिसमें वो अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ का एक प्रॉपर रूटीन सेट करते हैं. इवन समटाइम्स वो अपनी जो प्रोफेशनल एथिक्स है वहाँ पर भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को, हेल्दी रूटीन को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि उनकी जो प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी है या जो उनकी अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. देन द फोर्थ स्टेज इज एक्टिव स्टेज. एक्टिव स्टेज मीन्स जो उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए या कह सकते हैं कि जो हेल्दी रूटीन के लिए, उसको वो एक्टिवली फॉलो करते हैं. और इस स्टेज में उनको ढेर सारा सपोर्ट चाहिए होता है, ढेर सारा उनको मोटिवेशन चाहिए होता है. साथ में टेस्ट मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि उनको ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकता है. क्योंकि जब किसी भी पर्सन को लग रहा है कि पहले के तुलना में या पहले के कंपैरिजन में अगर वो अभी ज़्यादा एक्टिव हैं, उनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो उनकी मसल ग्रोथ बढ़ रही है या उनका जो ओबेसिटी वो कम हो रही है, उनकी जो फिजिकल अवेयरनेस वो ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में ऑटोमेटिकली जो उनका फिजिकल ग्रोथ है या फिजिकल जो उनका कह सकते हैं उनकी जो एक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है अपने आप. और साथ में वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के. देन उनकी जो उनका जो थॉट है फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव हो रहे होते हैं वो. देन द लास्ट एंड फिफ्थ स्टेज इज मेंटेनेंस स्टेज. Maintenance stage is a stage where these people needs a lot of motivation, a lot of support. क्योंकि हमें पता है जब हम फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम पर तो हमारी बॉडी में बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत क्विक चेंजेस होते हैं. बट आफ्टर सर्टेन टाइम हमारी जो बॉडी है वो यूज टू हो जाती है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, तो वहाँ पर चेंजेस होना थोड़ा सा स्लो हो जाता है. ऐसी कंडीशन में जो ऐसे लोग हैं या जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं इनको बहुत मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. साथ में उनको हमेशा मोटिवेटेड रखना है कि नो दिस एक्टिविटीज़ विल बी फ्रूटफुल फॉर यू. एंड एक जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के तरीके हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है. क्योंकि जब बॉडी किसी भी एक्टिविटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाती है तो हमें उस एक्टिविटीज़ के रेजिस्टेंस को, उसके लोडिंग को और ओवरलोड करना पड़ता है और बढ़ाना पड़ता है. क्योंकि सपोज अगर मैं आर्म कर्लिंग कर रहा हूँ 5 kg से कंसिस्टेंटली, तो एक टाइम के बाद में वो 5 kg का जो रेजिस्टेंस है, वो जो वेट है, वो हमारी बॉडी के लिए इतना यूजफुल नहीं रह जाएगा या इतना इम्पैक्टफुल नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी 5 kg के लिए इजीली यूज टू हो गई है. तो ऐसे कंडीशन में हमें जो ओवरलोड मेथड है वो अपनाना पड़ेगा, वो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा. साथ में कई बार लोगों का अगर उसने पहले 4 स्टेप फॉलो किए हुए हैं, उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मे बी चाहे वो उसका रीज़न कुछ भी हो, चाहे वो एक प्रॉपर मेथड नहीं फॉलो कर रहा है या
कुछ और चेंजेस हैं या लाइफ बॉडी में कुछ डिजीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होता है। तो उसको भी मेंटेन करने के लिए या उसको भी इन्हांस करने के लिए दे नीड अ प्रॉपर सपोर्ट एंड केयर एंड प्रॉपर मोटिवेशनल, जिससे कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनके अंदर जो ये जो 5 स्टेजेस थे, कॉम्प्लीमेंटेशन स्टेज एंड देन कॉन्टेम्पलेशन स्टेज, देन प्लानिंग स्टेज, उसके बाद में एक्टिव स्टेज, देन मेंटेनेंस स्टेज, इसको फॉलो करते हुए कोई भी एक पर्सन एक्टिवली फिजिकल एक्टिविटीज़ को उसको अपना सकता है या उसको फॉलो कर सकता है, एंड बाय विच ही कैन गेट अ हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसमें ढेर सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आएगा पैराग्लाइडिंग और माउंटेनियरिंग, स्नो स्केटिंग, उसके बाद में ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइड, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये भी डिस्कस करेंगे, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैं खुद भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत ढेर सारा इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं खुद भी ट्रैकिंग करता हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ वो, तो विल डिस्कस अबाउट इट एंड आई कैन शेयर माई ओन फीलिंग, माई ओन experiences with you all. So thank you so much once again. Subscribe the channel, watch full video and share with others also. Thank you so much.